Good morning, viewers. Today we are going to prepare a new topic, that is uh, what is ointment. Ointment क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, मेडिसिनल एप्लीकेशंस क्या है, ऑइंटमेंट बेसिस क्या है, वो सारी चीजें, और इसकी ऑइंटमेंट की प्रिपरेशंस क्या है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसकी पैकिंग क्या है, स्टोरेज कंडीशंस क्या है, डिस्पेंसिंग क्या है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे आज। हम कि कि टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट क्या है, इसकी प्रिपरेशंस क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। ठीक है, सो let's start. So firstly we should before starting the topics we should know about what is ointment. Ointment क्या है ointment? अगर जो मैं बात करूँ, ये एक सेमी सॉलिड ऑयली फेस प्रिपरेशन है, यूजली medicated, that can be applied externally to the skin in order to heal, soothe or protect it. So ointment क्या है students की? ऐसा greasy part और oily semi solid preparations जो कि medicated form में है, that can be applied externally and to the skin in order to heal the soothe or protect it. ठीक है, it is a viscous semi solid preparations usually topically on a variety of body surfaces. So drugs क्या है इसके अंदर? Drugs ingredients can be dissolved in emulsified or suspended in the ointment basis. The word ointment comes from the Latin under the meaning ointment with an ointment. ठीक है, so अब इसकी types है. Types क्या है? There are two types of ointment basis. First है हमारा medicated ointment, second है unmedicated ointment. So first हम जो मैं बात करूँ unmedicated ointment, ये क्या है? These ointment do not contain any drug. इसमें कोई भी इस ointment में कोई भी ड्रग्स इसमें कंटेन नहीं होती. दे आर यूजफुल एज इमोलेंट्स एंड प्रोटेक्टेंट्स. जैसे कि एग्जांपल है हमारा पेट्रोलियम जेली. Medicated ointment, these ointments contain drugs which show local or systemic effects. These are of several subtypes: dermatological ointments, ophthalmic ointments, rectal ointments, vaginal ointments and nasal ointments. First है हमारा पार्ट dermatological ointments. These ointments are applied topically on the external skin very easy. The ointment is applied to the affected area. उस affected area पे इसको apply करते हैं. That is a thin layer and spread evenly using a gentle pressure with the फिंगर टिप्स. हम अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से इसको जेंटली इसको प्रेशराइज करेंगे. दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स आल्सो. फर्स्ट है एपिडर्मिक ऑइंटमेंट्स, सेकंड है एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट, थर्ड है हमारा डायाडर्मिक ऑइंटमेंट्स. फर्स्ट जो मैं बात करूं एपिडर्मिक ऑइंटमेंट्स की, द ड्रग्स प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ ऑइंटमेंट एक्सर्ट देयर एक्शन ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन. एग्जांपल है कीटोकोनाजोल ऑइंटमेंट्स. Second है endodermic ointments. The drug present in this type of ointment exert the action on the deeper layer of cutaneous tissue. वो क्या था? Exert their action on the epidermis of the skin. Example है Demodex ointment. Third है हमारा diadermic ointments. The drug present in this type of ointments enter the deeper layers of the skin and finally in the systemic circulation and exert सिस्टेमिक इफेक्ट. की जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में लेयर्स में जो डीप करता है, पेनिट्रेट करता है इनटू द स्किन, फाइनली टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड एक्सर्ट सिस्टेमिक इफेक्ट्स. एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट. ठीक है, इसके बाद है हमारा ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स. दीज आर द स्टाइल preparations which are applied inside the lower eyelid. जो हमारे eyelid है हम इसको स्टाइल करते हैं. पहले स्टाइल क्या है? फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया. ओनली अनहाइड्रेस बेसिस आर यूज्ड इन देयर preparations. The ointment is applied as a narrow band of approximately 0.25 to 0.5 inches. Example है sulfacetamide sodium ointment. ठीक है, इसके बाद है आपका रेक्टल ऑइंटमेंट्स. दीज आर द ऑइंटमेंट्स अप्लाइड टू द पेरिनल और विद इन द एनाल कैनाल.
क्यों? बिकॉज द बेसिस यूज देयर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल 300 एंड पीईजी क्या है? पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल 3350, स्टाइल अल्कोहल, स्टाइल एस्टर्स, वैक्स, लिक्विड पैराफिन एंड व्हाइट पैराफिन। एग्जांपल है आपका बेंजोटिन ऑइंटमेंट। ठीक है, इसके बाद है आपका विजाइनल ointment. These ointments are applied to the vulvovaginal area or inside the vagina. Very easy. As vagina is more susceptible to infection, जो vagina है वो जल्दी infection को जल्दी कैच करती है, absorb करती है. The ointment should be free from microorganisms, molds and yeast. That example है candidicin ointment. ठीक है. इसके बाद है आपका nasal ointments. These are the used in the topical treatment of nasal mucosa. Drugs get absorbed into the general circulation through the rich blood supply of the nasal lining. Example है ipratropium bromide ointment की जो nasal ointment है ये क्या है? टॉपिकल ट्रीटमेंट में यूज होती है ऑफ द नेजल म्यूकोसा. जो ड्रग्स है वो एब्जॉर्ब होती है किसमें? इनटू द जनरल सर्कुलेशन थ्रू द रिच ब्लड सप्लाई. जो ब्लड सप्लाई है कहाँ पे? नेजल म्यूकोसा पे. जो इसको जो नेजल की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे इसकी जो सप्लाई होती है इसको ही एब्जॉर्ब करती है. एग्जांपल है हमारा इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड ऑइंटमेंट. ठीक है, इसके बाद है हमारा इसकी एडवांटेजेस. क्या है एडवांटेज? हैंडलिंग ऑफ ऑइंटमेंट इज इजियर देन द बल्कि लिक्विड डोजेज फॉर्म. ऑइंटमेंट को हैंडल करना इजी होता है देन द अदर लिक्विड dosage form. They are chemically होता है more stable than the liquid dosage form. They facilitate application of the directly to the affected body part and avoid exposure of other parts of the drug. They are suitable for patients who find it difficult to take the drugs by parenteral and oral routes. क्या है? they are suitable for patients who find it difficult. ये उन पेशेंट्स के लिए सुटेबल है जो इसको लेने में इसको डिफिकल्टी आ रही है टू टेक द ड्रग्स बाय पेरेंटल एंड ओरल रूट्स. इफ नो द कॉन्टैक्ट टाइम बिटवीन द ड्रग एंड द अफेक्टेड एरिया. ये है इसकी डिसएडवांटेजेस. दे आर बल्कियर होता है देन सॉलिड डोसेज फॉर्म. ये बल्की फॉर्म में होता है देन द अदर सॉलिड डोसेज फॉर्म. व्हेन एप्लीकेशन ऑफ एन एग्जैक्ट क्वांटिटी, जब इसको हम एग्जैक्ट क्वांटिटी लेते हैं ऑफ एन ऑइंटमेंट टू द अफेक्टेड एरिया इज रिक्वायर्ड. इट इज डिफिकल्ट टू एसरटेन द सेम, कि इसको बाद में इसको यूज करना बहुत ही मुश्किल होता है. दे आर लेस स्टेबल होता है देन द सॉलिड डोसेज फॉर्म. ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पार्ट दैट इज मेडिसिनल एप्लीकेशन ऑफ द ऑइंटमेंट. कि ऑइंटमेंट को आप कैसे मेडिकली फॉर्म में कैसे इसको अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो क्या है? ऑइंटमेंट आर यूज टॉपिकली फॉर सेवरल पर्पसेस. एग्जांपल एज प्रोटेक्टेंट्स, एंटीसेप्टिक्स, इमोलिएंट्स, एंटीप्यूटिक्स, केराटोलाइटिक्स एंड एस्ट्रिंजेंट. ऑइंटमेंट को हम टॉपिकली यूज करते हैं सेवरल पर्पस में. एग्जांपल है प्रोटेक्टेंट्स, हम इसको प्रोटेक्टेंट के यूज में करते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में इमोलिएंट्स, एंटीप्राइटिक्स, केराटोलाइटिक्स एंड एस्ट्रिंजेंट. ठीक है, इन केस ऑफ प्रोटेक्टिव ऑइंटमेंट इट सर्व्स टू प्रोटेक्ट द स्किन. ये हमारी अगर जो बात करूं प्रोटेक्टिव फेस की, जो ऑइंटमेंट है ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द मॉइस्चर, एयर, सन रेज एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर. वेरी इजी. It is necessary that the ointment neither penetrate the human skin barriers nor the facilitate the absorption of substances through the barriers. क्या है इसका मीनिंग? कि ये नेसेसरी होता है कि जो ऑइंटमेंट है ना तो वो पेनिट्रेट करे ह्यूमन स्किन बैरियर्स में. जो बैरियर्स है स्किन बैरियर वहाँ पे जो लेयर्स होती है डर्मिस, एपिडर्मिस एंड नो फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू दिस बैरियर. An antiseptic ointment is used to destroy or inhibit the growth of bacteria. जो antiseptic है ointment वो use किया जाता है to the destroy or inhibit the growth of bacteria. Frequently bacterial infections are deeply seated. A base which has the capacity to either penetrate or dissolve and release the medication effectively is therefore desired. ठीक है, so ointment used for their emollient effect that should be easy to apply. ointment को एक smoothness के उसमें यूज किया जाता है that should be easy to apply, non greasy होता है and effectively penetrate
to the skin. So next है हमारा टॉपिक ऑइंटमेंट बेसिस। ऑइंटमेंट बेसिस की ऑइंटमेंट बेसिस क्या है? होलोजेनियस ऑइंटमेंट बेसिस, एब्जॉर्प्शन ऑइंटमेंट बेसिस, water and oil emulsion ointment basis, oil in water emulsion ointment basis and water miscible ointment basis। तो क्या है हमारा? फर्स्ट होलोजेनियस होलोजेनियस ऑइंटमेंट बेस, सेकंड है एब्जॉर्प्शन ऑइंटमेंट बेस, थर्ड क्या है हमारा? वाटर ऑयल इमल्शन ऑइंटमेंट बेस एंड फोर्थ इज क्या है हमारा? ऑयल और वाटर इमल्शन ऑइंटमेंट बेस एंड फिफ्थ क्या है हमारा? वाटर मिसिबल ऑइंटमेंट बेस। ठीक है, इसके बाद है हमारा so these are five classes or types of ointment bases which are differentiated on the basis of their physical composition। हम इनको इनकी physical composition के रूप में इनको categorize करते हैं one by one। These are oleaginous bases, absorption bases, water and oil emulsion bases, oil and water emulsion bases and water soluble or water miscible bases। सो फर्स्ट क्या है हमारा? ओलियोजेनियस ऑइंटमेंट बेसिस। क्या होता है इसमें? दीज बेसिस आर फैट्स, फिक्स्ड ऑयल्स, हाइड्रोकार्बन्स और सिलिकन्स। क्या होता है इनमें? फैट्स होता है, फिक्स्ड ऑयल्स होता है, हाइड्रोकार्बन होता है और सिलिकन्स होता है। दे आर एनहाइड्रस, ग्रीसी, नॉन वॉशेबल, डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड occlusive, form a film on skin. So to increase the skin hydrations by the reducing the protectant to the reducing the rate of loss of surface water, they should not be applied to the infected skin. They should be applied to the affected skin. They are used as a protectant and the effective base which are used in the. So they are anhydrous, greasy, non-washable, does not absorb water and occlusive. Occlusive क्या होता है? Form a film on skin, so it increases the skin hydration by reducing the rate of losses of surface water. They should not be applied to the infected skin. They are used as protectant emollient vehicles or the hydrolyzed drugs। एग्जाम्पल है वाइट पेट्रोलैक्टम एंड वाइट ऑइंटमेंट। सेकंड है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑइंटमेंट बेसिस। इसमें क्या है? ओलियोजेनियस बेसिस है, तो हम इसको वाटर ऑइंटमेंट ऑयल इन वाटर एंड ऑयल सर्फेक्टेंट यूज करेंगे। ये क्या है? हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट बेस है। they can absorb several times their weight of water to form the water and oil emulsions। ये क्या है? अपने वेट से ज्यादा वेट में जो वाटर है टू फॉर्म द वाटर इन ऑयल इमल्शंस यूज करते हैं। दे आर नॉन वॉशेबल है, नॉट वाटर soluble है। they are used as protectants, emollients, vehicles for aqueous solution, solids and non hydrolyzed drug। एग्जांपल है इसमें हाइड्रोफिलिक पेट्रोलैक्टम, एनहाइड्रस लैनोनिन, एक्वाबेस, एक्वाफोर एंड पॉलीसोल। अब है इसके बाद है हमारा वाटर इन ऑयल इमल्शन ऑइंटमेंट बेस। These are anhydrous, hydrophilic, absorb water and non-water removal with low thermal conductivity and occlusive. They have the same properties as the absorption basis. They are used as emollients, cleaning creams, vehicles for solid, liquid or non-hydrolyzable drug। Example है cold cream type, hydrous lanonis, rose water ointment and hydro cream। Oil in water emulsion ointment bases. These bases are anhydrous, water soluble, absorb water and water washable। They are either carboxyls, polyethylene glycols और hydrated gums जैसे कि bentonite है हमारा, gelatin है, cellulose derivatives। ठीक है, PEG क्या है हमारा? polyethylene glycol। They are used as drug vehicles। Example है PEG ointment and polymerase। लास्ट है हमारा पॉइंट कि वाटर मिसिबल या वाटर एब्जॉर्बेबल ointment bases। The bases are anhydrous, water soluble, absorb water and water washable। ठीक है, they are either carboxyls, polyethylene glycols or hydrated gums, bentonite, gelatin, cellulose
derivatives. They are used as drug vehicles, PEG ointment and polybase. अब है choice of the ointment basis, selection of the appropriate base based on desired release rate, कि आप release rate कब वो drug release हुई, desirability for enhancement of percutaneous absorption, थर्ड है एडवाइजेबिलिटी ऑफ ऑप्टिमिज्म, ठीक है। फिर है हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग ऑन कंसिस्टेंसी और अदर फीचर्स। फिर है पेशेंट फैक्टर, ड्राई एंड वीपिंग एंड स्किन। मीन्स क्या है कि सिलेक्शन है जो हमारा किसी भी अप्रोप्रिएट बेस ड्रग्स का, वो क्या है, डिजायर रिलीज रेट, कि कब वो ड्रग हमने ली, कब उसका डिजायर एक्शन स्टार्ट हुआ, कब वो ड्रग रिलीज हुई। फिर है इसके बाद हमारा इसमें है डिजायरेबिलिटी फॉर एनहेंसमेंट ऑफ परकुटेनियस एब्जॉर्प्शन। डिजायरेबल कैसा है, कैसे आपने उसको एनहेंस किया फ्रॉम द परकुटेनियस एब्जॉर्प्शन से। एडवाइजेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की आपका फॉर्म साइज क्या है, फिल्म फिल्म उसकी कैसी बन रही है, शॉर्ट टर्म पे है, लॉन्ग टर्म पे है, ठीक है। शॉर्ट टर्म पे वो स्टेबिलिटी कैसी है, लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी ऐसी है। इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग ऑन कंसिस्टेंसी और अदर फीचर्स ऑफ ऑइंटमेंट बेस, ठीक। फिर है पेशेंट फैक्टर, जैसे कि ड्राई हो गया, वीपिंग एंड वीपिंग कफ हो गया, स्नीजिंग हो गई, ये सारी चीजें। सो अब है आइडियल ऑइंटमेंट बेसिस। अमंग द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के बीच में विच एन आइडियल ऑइंटमेंट, वो क्या है, दैट शुड possess are does not retard wound healing, does not retard wound healing, low sensitization index है, pharmaceutical allegiance कैसा है, a low index of irritations, non dehydrating, non greasy part है, neutral interactions है, good keeping qualities है, ठीक है। एंड कंपैटिबल है किसमें, विद द कॉमन मेडिकामेंट्स में, एफिशिएंट रिलीज है मेडिकामेंट एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन, वॉशेबल है, easily removed with water है, minimum number of ingredients and the ease of compounding, ठीक है। सो तो क्या है हमारा, does not retard the wound healing, कि जो इसमें वुंड हीलिंग है प्रॉपर, हम इसको फिंगर टिप से इसको उसको प्रेशराइज करते हैं उसकी हीलिंग में। फिर है लो सेंसिटाइजेशन इंडेक्स, कि आप कैसे इसमें सेंसिटाइज हो रहा है, कैसा इंडेक्स है इसका। फार्मास्यूटिकल एलिजेंस कैसा है उसका, कलर कैसा है, उसकी शेप कैसी है, उसकी कंडीशंस कैसी है, उसकी वायबिलिटी कैसी है, लो इंडेक्स ऑफ इरिटेशन, कि आपको इरिटेशन हो रहा है वो किस फेस में हो रहा है, ठीक है। फिर है नॉन डिहाइड्रेटेड, वाटर जो है मॉलिक्यूल्स वो कितने हाइड्रेट है और उसमें आपको कितने ऑक्सीडेंट यूज चाहिए, डिहाइड्रेट कैसा है, नॉन ग्रीसी पार्टिकल्स है, न्यूट्रल रिएक्शन, जब भी आप उसकी रिएक्शन करोगे तो उसका जो रिजल्ट हो वो न्यूट्रल बेस्ड हो, ना ही वो उसमें पॉजिटिव में ना ही नेगेटिव में, उसकी जो है रिपोर्ट हो, जो उसके एनालिटिकल और जो इनऑर्गेनिक हो उसकी कंडीशंस वो बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। फिर है गुड कीपिंग क्वालिटीज, की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ठीक हो, क्वालिटीज में हैंडलिंग ऑफ प्रोसेस को, जीएमपी उसका ठीक हो, टोटल क्वालिटी में टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट उसकी ठीक हो। फिर है कंपैटिबल विद कॉमन मेडिकामेंट्स, जो आप मेडिकामेंट जो बना रहे हो, जो उसकी कंपैटिबिलिटी है वो बिल्कुल ठीक हो विद द अदर कॉमन इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। और फिर क्या है, एफिशिएंट रिलीज ऑफ मेडिकामेंट एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन, एफिशिएंट उसका यूज हो जो आपने रिलीज की है मेडिकामेंट एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन। अच्छा, वॉशेबल कैसा है, इजीली रिमूव विद वाटर हो, मिनिमम नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट, उसके अंदर जो भी होंगे हमारे इंग्रेडिएंट वो बिल्कुल ही मिनिमम नंबर पे होंगे। एंड ईज ऑफ कंपाउंडिंग, कैसे आप उसको कंपाउंडिंग कर रहे हो, बाय द मैन्युफैक्चरिंग, बाय द क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। सो वीवर्स, ये किया था हमने इसका इसका ऑइंटमेंट बेसिस क्या था हमारा, ओलेजिनियस ऑइंटमेंट बेसिस, एब्जॉर्प्शन ऑइंटमेंट बेसिस एंड वाटर एंड ऑयल इमल्शंस बेसिस, ठीक है। और हमने इसमें किया था ऊपर की मेडिसिनल एप्लीकेशंस ऑफ द ऑइंटमेंट की एप्लीकेशन जो है ऑइंटमेंट की, कैसे आप उसको मतलब मेडिकली यूज उसको कर सकते हो, हम उसको टॉपिकली यूज कर सकते हैं, एज ए हम इसको प्रोटेक्टेड यूज कर सकते हैं, एज ए हम उसको एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हैं, एंटीप्रोटिक इफेक्ट्स यूज करते हैं, केराटोलाइटिक इफेक्ट्स यूज करते हैं एंड एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट उसको हम यूज
कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक में कैसे? ऑइंटमेंट इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द इनिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो कि फ्रीक्वेंटली होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड आर वीकली सूटेड ए बेस विच आर कैपेसिटी टू द हायर मेडिकेशन। ठीक है, इमोलिएंट में इफेक्ट हम इसको कर सकते हैं। एडवांटेज में हमने पढ़ ली इसकी, हमने इसके डिसएडवांटेज भी पढ़ ली। ठीक है, हम इसको फिर हमने स्टडी किया इसकी ऑइंटमेंट टाइप्स क्या है। डर्मेटोलॉजिकल ऑइंटमेंट हो गया, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट हो गया, रेक्टल ऑइंटमेंट्स हो गया, जनरल ऑइंटमेंट एंड नेजल ऑइंटमेंट। ठीक है, हमने जो इसकी टू टाइप्स पढ़ी आगे फर्दर, मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स एंड अनमेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स। So this is the topic of ointments which are